پاکستان سے متعلق کوئی بھی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس. کہا بلوچستان میں ہم پر حملہ ہوا اس کا حساب چکا دیا. وزیرستان میں دہشت گرد حملے پر افغان وزیر خارجہ سے کہا گل بہادر گروپ کے خلاف کارروائی کریں. 18 مارچ کو افغانستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف تھا. افغان حکومت یا افغان عوام کے خلاف نہیں. صدر آصف زرداری کی ماسکو میں دہشت گرد حملے کی مذمت. روسی صدر اور سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار. کہا پاکستان گھناؤنے حملے میں پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے غم میں شریک ہے. اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آور عالمی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے 8:30 سے 9:30 بجے تک روشنیاں بجھا دی گئیں. پارلیمنٹ ہاؤس کی غیر ضروری لائٹس 1 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئیں. یوم پاکستان پر اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ. چکرپڑیا گراؤنڈ میں اللہ کی صدائیں. جوانوں کے قدموں کی دھمک. جنگی طیاروں کی گھن گرج. دشمن پر لرزہ طاری. جدید دفاعی سامان توجہ کا مرکز رہا. تقریب کے مہمان خصوصی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان تھے. اور راولپنڈی کے علاقے خیابان سر سید میں معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل گئیں. فائرنگ کی زد میں آ کر 10 سال کا بچہ جاں بحق. پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. دہشت گردوں یا کسی گروپ کو ملک کا امن سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پریڈ سے خطاب. کہا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم خطے میں عدم استحکام کی بڑی وجہ ہے. بھارت کے تمام غیر قانونی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں. خوشی ہے پاکستان میں جمہوری حکومت قائم ہو چکی. تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں. عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کے لیے اقدامات کرے. پاکستان فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا. پاک فضائیہ کے شیر دل اسکواڈن کی جاندار پرفارمنس. شاہین بریک اور ٹویسٹ کا مظاہرہ. فخر پاکستان JF-17 تھنڈر, F-16 J-10C اور معراج طیاروں کا فلائی پاسٹ. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں بھارت کو دھول چٹانے والے اسکواڈن نے بھی حصہ لیا. یوم پاکستان پریڈ میں فری فال کا شاندار مظاہرہ. اسکائی ڈائیورز فضا میں رنگ بکھیرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ میں اترے. میجر جنرل عادل رحمانی نے وزیر اعظم کو قومی پرچم پیش کیا. جدید ہتھیاروں نے دشمن پر دھاک بٹھا دی. جدید ترین حیدر ٹینک کا گن سلوٹ. الخالد ٹینک نے سلامی پیش کی. بابر, غوری اور ابابیل میزائل سسٹم کی ہیبت. جدید دفاعی سامان. میلی نگاہ ڈالنے والوں کے لیے تباہی کا پیغام. SSG کمانڈوز کا سلنگ سے لٹکنے کا شاندار مظاہرہ. کوبرا گن شپ اور اگسٹا ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا. یوم پاکستان پر ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب. سینئر سیاستدان راجہ محمد ظفر الحق, سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ, سابق نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر, ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر کو نشان امتیاز سے نوازا گیا. اصلاح الدین صدیقی کو کھیل, افتخار عارف کو ادب میں خدمات پر اعزاز دیا گیا. مشتاق احمد سکھیرا, ناصر محمود کھوسا, ڈاکٹر محمد امجد ثاقب اور فواد حسن فواد کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. فہد ہارون کو ستارہ امتیاز, جبکہ صحافت کے شعبے میں حیدر نقوی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ماضی کی معروف اداکارہ شبنم کو ستارہ امتیاز, اداکارہ سجل علی, جوگن کاظم کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. مسلح فوج کے 598 افسران اور جوانوں کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا گیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی ملاقات. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. شہزادہ خالد بن سلمان نے یوم پاکستان پریڈ میں بھی بطور گیسٹ آف آنر شرکت کی. تقریب میں آمد پر آرمی چیف اور وزیر دفاع نے شہزادہ خالد بن سلمان کا استقبال کیا. پاکستان کا دورہ کرنے پر آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع کا شکریہ ادا کیا. شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان دینے کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی. صدر آصف علی زرداری نے اعزاز سے نوازا. خان صاحب آج اگر جیل میں وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ 47 میں آئے,
वो हुकूमत करने के हकदार नहीं है। बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का दावा। कहते हैं जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत के हकदार नहीं। मुल्क में कानून होगा तो जमहूरियत आएगी। हमारा मकसद जमहूरियत कायम करके मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है। हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। बानी पीटीआई ने हम्माद अजहर को काम जारी रखने की हिदायत की है। हम्माद अजहर ने पार्टी को मुश्किल दौर में संभाला। एमक्यूएम के कई रहनुमा फैसल वादा को सेनेट में सपोर्ट करने के मुखालिफ। जराये के मुताबिक एमक्यूएम के जानिब से आमिर चिश्ती, शहबाज जहीर और दीगर नामों पर गौर जारी हतमी फैसला न हो सका। एमक्यूएम के कई रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इसरार। एमक्यूएम सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देगी। टैक्स नेट बढ़ाने का मिशन। ताजरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम आ गई। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर कम रिटेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। एफबीआर ने मुजव्वजा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर कराची समेत 6 बड़े शहरों में होगा। रिटेलर्स और होल सेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। हर दुकानदार को कम अज कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। यौम पाकिस्तान के आगाज पर इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्की सलामती के लिए दुआ की गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास, पाक आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर गाज तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गाज के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये तारीखी दिन हमें आबा और अजदाद की अजीम कुर्बानियों और खिदमात की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज हर वक्त किसी और भी कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगी इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान जिंदा। दोस्त मुल्कों के फौजी दस्तों ने भी यौम पाकिस्तान परेड में हिस्सा लिया। चीन के फौजी दस्ते का परेड करते हुए पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा दस्ते की क़यादत लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल ने की। अज़रबैजान के फौजी दस्ते ने भी परेड में शिरकत की। दुनिया को पाकिस्तान से मजबूत दोस्ती का पैगाम दिया। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों में तकारीब। नई दिल्ली में वाक़े पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब हुई। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई रॉयल मिलिट्री बैंड ने कौमी तराने की धुन पेश की। बीजिंग में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम लहराया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई की गई। रोम के सिफारत खाने में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। यौम पाकिस्तान परेड में मुख्तलिफ फ्लोट्स के जरिए पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी की गई। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत नुमाया करते फ्लोट्स हाजिरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। मिली नगमे पेश किए गए। पेशावर के वर्सिक रोड पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ भाग। फायरिंग से एक खातून भी जख्मी हुई। पुलिस का कहना है वाकया जायदाद के तनाजे पर पेश आया। अपने बेटे की तरह ही पाला, वो मेरा बेटा ही था। मेरा बेटा ही गया है, मेरा भाई नहीं गया। मुझे पता है कि मेरा कौन गया है, उनको नहीं पता।
पतंग उड़ाने वाले का एक मजाक, एक शुगल, एक गेम हो गई है, हमारी नस्लें उजड़ गई हैं। फैसलाबाद में कातिल डोर, एक और कीमती जान निकल गई। डिचकोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार 22 साला आसिफ मुश्ताक गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। आसिफ की ईद के बाद शादी थी। भाई का कहना है पतंगबाजों के शौक ने हमारा घर उजाड़ दिया। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहती हैं तफरीह के लिए किसी की जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन का चौथा रोज 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ट्रैक्टर, कार और 4 बाइक्स बरामद। मुल्जिमान के 5 ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मिसमार कर दिया गया। रूस में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में हलाकतों की तादाद 143 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से फायरिंग की। दस्ती बम फेंके जिससे आग तेजी से फैल गई और छत गिर गई। रूस का खून का बदला खून से लेने का ऐलान। कहा तमाम जिम्मेदारों को खत्म करेंगे। रूसी सदर पुतिन का कहना है मॉस्को दहशतगर्दी में मुलव्वस 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द यूक्रेन फरार होते हुए पकड़े गए। यूक्रेन के सदर की हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। अमरीकी मीडिया ने दावा किया मॉस्को हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मॉस्को में हमले की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में रूस के साथ खड़ा है। फ्रांस, जर्मनी, भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रूस में हमले की मजम्मत। गजा में इस्राएली बर्बरियत जारी। सहोनी फोर्सेस की रफा में घर पर बमबारी। 5 फलस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है गजा जंगबंदी में डेडलॉक इंसानी तबाही का सबब बन रहा है। गजा में भूख से मरते अफराद के लिए भेजी जाने वाली इमदाद को भी रोका जा रहा है। बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। ये सूरत हाल रही तो गजा इंसानों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आज रफ़ह का दौरा करेंगे। इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में दस्तयाब हूँ। फैसला T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए किया। एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। चेयरमैन मोहसिन नकवी से PCB के डायरेक्टर्स की मुलाकात। बोर्ड के वसाइल में इजाफे का प्लान तलब कर लिया। PSL को ज्यादा दिलचस्प बनाने, खवातीन क्रिकेटर्स के लिए PSL शुरू करने की तजवीज। मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट के फरोग के लिए हर सतह पर जामे हिकमत अमली तरतीब दी जाए। साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान 89 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। वो काफी अरसे से अलील थे। शहरियार खान 2 मरतबा सरबराह PCB रहे। उनकी तदफीन कल कराची में होगी। जैज ने 37 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ये सरमायाकारी हम अपने सारिफीन के लिए कर रहे हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर डिजिटल सर्विसेज मुयस्सर हो सकें। जैज की मुश्किल मुआशी हालात में गुज़िश्ता बरस 37 अरब की सरमायाकारी। जैज की पाकिस्तान में सरमायाकारी 10 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। सरमायाकारी का मकसद डेटा की बढ़ती तलब को पूरा करना है। जैज के CEO आमिर इब्राहिम का कहना है सरमायाकारी सार्फिन को बेहतर सर्विस देने के लिए कर रहे हैं।